مسعود صاحب، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ عام انسان کا آپ کی ریسرچ کے اوپر پورا پورا حق ہے کہ وہ جانے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کے لیے کیا فائدے مند ہے۔ میں اب اگلے انوائٹڈ اسپیکر کو دعوت دیتا ہوں، عبد الرقیب بانی صاحب۔ ڈاکٹر نکل پرساد صاحب، پروفیسر رضوان اقبال صاحب، دیگر اساتذہ کرام، ریسرچ اسکالرز، طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب، سرسری اقال اینڈ گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو۔ جو مقالہ میں پریزنٹ یہاں پر پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے اردو میں سائنسی تعلیم کے مسائل اور امکانات جموں کشمیر کے خصوصی حوالے سے۔ کیونکہ جو یہاں پر کشمیر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مہمان گرامی ہے، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ کشمیری کشمیروں کی مادری زبان ہے، لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے کشمیر میں جو ہر گھر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ میں اس بات سے گریز نہیں کروں گا، جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے کشمیر میں جب بچے کی پرورش ہوتی ہے تو والدین اس بات پر کافی ایمفیسس یا اس بات پر فوقیت دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ اردو میں بولنا چاہیے۔ جو میرے یہاں پر کلیگس، میرے ریسرچ اسکالرس یا کشمیر سے لوگ ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ ہمارا جو بچہ ہے سکول میں وہ جائے گا تو سکول میں بھی وہ اردو میں ہی بات کرنا پسند کرتا ہے، چاہے وہ کسی درجے کا بھی ہو، چاہے وہ غریب گھر کا ہو، چاہے وہ امیر گھر کا ہو۔ تو اکثر تقریباً 80% گھرانے کے لوگ اردو میں ہی بچوں کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ شاید مجھے ڈاکٹر اقبال کا یہ یہاں پر یاد آ رہا ہے، ان کا کلام۔ اقبال نے کہا ہے، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ شاید کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا مت احساس ہوگا یا یہ سمجھ مت ہوگی کہ اردو ایک ایسا لٹریچر، ادب ہے جس میں ہم زندگی کے مقاصد، محبت، معرفت کی جھلک اس میں دکھتی ہے۔ چونکہ بچے کی نشو نما کے لیے، بچے میں سائنسی مزاج، سائنسی سوچ پیدا کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کا ایک خاصا رول کردار ہے۔ جموں کشمیر میں بھی جو گورنمنٹ ہے یا ادارے ہیں وہ اس بات سے بالکل بخوبی واقف ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکسپینشن، پھیلاؤ ہوا ہے تعلیمی اداروں کا، چاہے وہ سکول ہے یا کالج ہے، اچھا خاصا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم بات کریں گے پروموشن آف سائنس کی، سائنٹیفک ٹیمپر کی، سائنٹیفک مزاج کی، تو اس بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ جو یہاں پر نئے کالجز اسٹیبلش ہو گئے ہیں ان میں سائنسی تعلیم پڑھائی نہیں جاتی۔ میرے ڈین اکیڈمک افیئرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید یہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ کیا وجوہات ہے، یہ فائنانشل کنسٹرینٹس ہے کہ ہم انفراسٹرکچر، جو ڈھانچہ سائنسی مزاج، سائنسی تعلیم کے لیے مہیا ہونا چاہیے، وہ ہم وہاں پر فراہم ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں نہیں کر پا رہے ہیں۔
एक जहाँ तक साइंसी तालीम का ताल्लुक है, हम उन्हीं कॉलेजेस में ये सहूलियत बच्चों को दे रहे हैं जहाँ जो ओल्ड कॉलेजेस है, जो फार फ्लंग में कॉलेजेस हमने बनाए हैं, गाँव में कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए हैं, वहाँ साइंसी उलूम बच्चों के लिए ये सहूलियत कम है। जब हम उर्दू की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं उर्दू इकोसिस्टम, अब जिन कॉलेजेस में, जिन यूनिवर्सिटीज में हम साइंसी तालीम बच्चों की नशोनुमा के लिए, बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर, साइंसी मिजाज, साइंसी सोच पैदा करने के लिए जहाँ पर साइंसी तालीम हम फराहम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर उर्दू इकोसिस्टम नहीं है। मैं यहाँ पर खुशी से, अल्ताफ अंजुम साहब हमारे यहाँ पर बैठे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर है, इन्होंने एक कोशिश की उर्दू इकोसिस्टम डेवलप करने की। कश्मीर यूनिवर्सिटी में इन्होंने वीसी साहब को अप्रोच किया, और जो साइन बोर्ड्स यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि वो साइन बोर्ड्स इंग्लिश में भी है और नीचे वो उर्दू में भी है। क्योंकि वक्त की कमी की वजह से जो मेरा मकाला है, मकाले का जो अनवान है, उसमें उसके अनवान का जो क्रक्स है, दैट इज मसाइल और इम्कानात, उर्दू में साइंसी तालीम के मसाइल और 2 मिनट ओके। जहां तक तौसी का ताल्लुक है, इस प्रोग्राम की वसादत से मैं चाहता हूं कि जब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में साइंसी तालीम की तौसी हो जाएगी, तो ये तौसी होनी चाहिए इन ट्यून विद उर्दू लैंग्वेज। चूंकि मैंने पहले ही बात की, हमारा बच्चा उर्दू लैंग्वेज जुबान के साथ काफी लगाव रखता है। हमारा बच्चा नहीं, बल्कि उनके वालिदैन भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों की नशोनुमा उर्दू जुबान में ही होनी चाहिए। अब जब हमारा बच्चा हायर सेकेंडरी में जाता है, हमारा बच्चा कॉलेज जाता है, वहाँ पर उसको जो टीचर्स जब साइंस पढ़ाते हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो हमारे बच्चे को साइंसी तालीम हासिल करने इंग्लिश मीडियम में साइंसी तालीम हासिल करने में काफ़ी दुश्वारियाँ होती है। सो डू अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद एक एजुकेशन का शागिर्द होने के बावजूद भी मुझे इस किस्म के प्रोग्राम की खुद आगाही नहीं थी। तो ज़रूरत इस बात की है, क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज की अपने खुतबे में, मैंने कहा कि कश्मीर में उर्दू ज़ुबान को काफ़ी लोग पसंद करते हैं और समझते भी है। ज़रूरत इस बात की है कि जो हम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, टीचर्स के लिए डिफरेंट वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वो उर्दू में भी होनी चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको चाहिए कि वो इन प्रोग्रामों को जो हम उर्दू मीडियम में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं एनकरेज करें। अस्सलाम वालेकुम। जस्मीना जान। ताल्लुक की तहकीक। PCOS यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम खवातीन में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंडोक्राइन बीमारी है, जो इन औरतों में पाई जाती है जो अपने तवलीदी सालों में होती है, यानी जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में होती है। PCOS औरतों में बहुत से अलामात और भी होते हैं, जिनमें पहला है इजाफाई एंड्रोजन, जिससे हिर्सुटिज्म यानी मर्दों की तरह बाल आना, मुहासे निकलना जिनको हम दाने भी कहते हैं, और मरकजी चर्बी शामिल है। और तवलीदी बीमारी जिसमें बांझपन, महावरी की बेकायदगी, इस्तिकाते हमल यानी मिसकैरेज, हमल की पेचीदगियां और मेटाबॉलिक पेचीदगियां शामिल है। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म एक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो तवलीदी उम्र की खवातीन में पाया जाता है। PCOS और हाइपोथायराइडिज्म की बैक वक्त मौजूदगी तवलीदी सेहत पर ज्यादा शदीद और पेचीदा असरात मुरतब करती है। ये एंडोक्राइन अवारिस बांझपन का बाइस बनती है, हमल के नताइज को मुतासिर करते हैं, और बाज़ औक़ात क़ब्ल अज़ वक्त बेज़ादानी की नाकामी का सबब भी बनती है, यानी प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर जिसको हम कहते हैं।
इस नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट इस मुताले का मकसद था PCOS खवातीन में मुख्तलिफ क्लिनिकल बायोकेमिकल और हार्मोनल खसूसियात पर सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के असरात का जायजा लेना। तरीकाकार में मौजूद थे शमूलियाती मयार और खारिजी मयार। फिर उसके बाद क्लिनिकल तशखीस हुआ जिसमें सारी मज़ामीन से हैज़ यानी महावरी, हिर्सुटिज्म यानी मर्दों की तरह बाल आना, एक्नी और बाल गिरने की तफसीलात के बारे में इंटरव्यू लिया गया। उसके बाद लेबॉर्ट्री तशखीस हुआ जिसमें खून के नमूने लिए गए जिससे फिर सारे टेस्ट किए गए। टेस्टिंग का इंतजाम इस तरह किया गया था कि हार्मोन्स के नमूने महावरी के दूसरे से 7वें दिन तक जमा किए गए। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले जब उनका बेसलाइन असेसमेंट हुआ, बेसलाइन असेसमेंट के बाद मंशियात की मुदाखलत हुई, यानी फिर हमें ड्रग इंटरवेंशन करना पड़ा। ड्रग इंटरवेंशन हमने लीवोथायरोक्सिन से किया और लीवोथायरोक्सिन देने के बाद क्लिनिकल बायोकेमिकल और हार्मोनल पैरामीटर्स का 3 माह और 6 माह के बाद फिर से जायजा लिया गया। नेक्स्ट। नताइज हमने देखा कि PCOS और सब क्लिनिकल खवातीन में वक्त की पाबंदी की आई एम लाइक कंक्लूडिंग